सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भरत जी। थोड़ा सिस्टम दिक्कत कर रहा है इसलिए सर सिस्टम पे नहीं मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं जरा प्रिपेयर कर लूँ जो जो स्क्रीन दिखाना होता है ना। सर सर प्लीज सर। ये तैयारी कर। भरत जी, जी सर। मैंने क्या किया है कि पेपर 4 एंड पेपर 1 के आंसर सीट भी शेयर कर दिया ग्रुप पे सर। और आज का सेशन लास्ट सेशन है। जी सर। इन दिस मॉर्निंग बिफोर दिस योर एग्जामिनेशन। तो सर मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आंसर सीट रिमेनिंग टू फर्स्ट एंड थर्ड दोनों पेपर के हमने शेयर कर दिए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड डाउट जो मैं डिस्कस कर सकूं या क्लियर कर सकूं, वो आप लोग यदि शेयर करना चाहें तो मैं ये चाहता हूं कि ये सेशन डेडिकेटेड हो फॉर दैट पर्पस ओनली। सर सर ग्रेट सर। Sir, are you sending that paper 3 papers? Sir, I already sent it right now, just 5 minutes back. Okay, thank you very much, sir. On the group. Thank you, sir. Already. What I want to say, today's discussion, today's meeting is the last meeting of this session before this AOR examination in the morning. So I want to discuss and clarify, if I can, two doubts of all the participant who is present here. This is confined to the doubt clearance session as, or regarding paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, whatever. Because we do not have much time before the exam. And in one day, this is very difficult to cover the entire paper, even paper 1 and paper 3. Am I right or wrong? So let us start. If you have any queries, then please, most welcome. Or should I do clarify something my own? Sir, please, sir. चलो, मैं ही 2-3 पॉइंट आउट करना चाह रहा था। एक चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था, सुप्रीम कोर्ट रूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब हाउ डू आई रिमेम्बर कि एग्जैक्टली ऑर्डर कहाँ पर है। इस सेशन को जरा रिविजिट कर थोड़ी देर के लिए, सो दैट कि पर्टिकुलर ऑर्डर ब्रेन में डायरेक्टली हिट कर जाए। आप जरा देखेंगे सुप्रीम कोर्ट रूल्स के इंडेक्स को, then there are 47 order among 9 parts of the entire Supreme Court rules. 9th part is comprising all the schedules, first schedule, second schedule, third schedule and fourth schedule. If you will go to the schedule, especially for the third schedule, third schedule is the most important part for the purpose of filing, for the purpose of even paper 1 they will ask, it was asked in the first time,
what is the limitation, what is the court fees for that particular remedy or application or petition. That court fees in table of the court fees as third schedule, yes, it is divided into three parts. Part 1, part 2, no, it's a 2-part only. Part 1 and part 2. Yes, part 3 also. Even part 4 also. Part 1 is talking about the original jurisdiction. And here is filing and registration of plaint. It is 250. And otherwise, all the filing in original jurisdiction is the 500. Like filing and registration, written statement. Sorry, sir. It's 2,500 rupees. 2,000? 500, sir. Yes, 2,500 for the plant. Sir, I am talking about just make a synchronization among the court fees part. If you will see, especially I would like to take you on the part 3, that is the miscellaneous. Otherwise, everyone is aware about everything. But I would like to take you especially regarding this part 3, that is the miscellaneous court fees. Wakalatnama 10 rupees and every affidavit 20 rupees. And every application to a judge in chamber, comma, the registrar or taxing officer not specially provided for. 50 rupees. It is at 4th. And second, every application to the court especially provided for 100 rupees. Every application to the court by notice of motion where an ad interim ex parte order is prayed for. This is 200. So in miscellaneous 10, 20, 50, 100 and 200. ये slab हैं and there is a difference, clear difference between 2, 3 and 4. Be sure, यदि कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट के सामने जाता हो with ad interim application and notice of motion, it certainly required 200 court fees, and otherwise every application which is not required by notice of motion, it is 100 rupees, and registry and chamber this is 50, and affidavit 20 and wakalatnama. This is the point. Kindly keep in mind, might be possible कि 1.5 marks questions will dedicated to this particular table. Anyway, मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि हम इंडेक्स में देखें तो especially part 1 which is running from order 1 to order 15, मैं पूरे सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर को एक बार सुप्रीम कोर्ट रूल्स कैसे ये डिवाइड किया हुआ. सो 1 to 8 is a general, 1 to 15 is the general. I'm sorry, order number इंडेक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑर्डर नंबर 1 to 15 इज जनरल, ऑर्डर नंबर 16 to
24, it is applet as part 2. And order 25 to 46. This is original jurisdiction as part 3. And then review and QPT. मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, just have some attention to the part 2 as appellate jurisdiction first, and then part 3 to the even in part 1, that is the general. कोई भी चीज की जब शुरुआत होती है ना, यूजुअली वी आर सेइंग दिस इज 1 2 3 स्टार्ट. So 1 2 3 is the very important part, and start then it's a very fluent part. मतलब हम ये कहें कि 1 2 3 so 1 2 3 is the starting part. यदि पार्ट 1 का 1 2 3 आप देखें, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, these are the very important order, and very next 1 2 3, that is 5 6 and 7, 4 5 and 6. 4 is talking about the advocate on record, 5 is talking about this chamber jurisdiction, and 6 is constitution of benches. And this 6 order, first to 6 in part 1, that is the general, is the most important order of Supreme Court rules, जहां से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आने की संभावनाएं हाई है. So we cannot ignore at least this 6 orders, especially order 4 and order 5, because order 4 is talking about Supreme Court practitioners like advocate on record, advocate and other things, even the advocate on record examination. मैं वापस ऑर्डर 4 पे आऊंगा, बट मैं सिर्फ अब आना चाहता हूँ दिस इज पार्ट 2. पार्ट 2 इज रनिंग फ्रॉम 16 to 24. मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये फिगर याद रखें, 16 and 24. इसलिए याद रखें कि ये एक डिमार्केशन लाइन क्रिएट करता है. 16 से पहले पार्ट 1 है, एंड 24 के बाद ओरिजिनल जुरिडिक्शन को होता है, और 16 to 24 इज एपलेट जुरिडिक्शन. तो ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स 16 and 24 को हम सिर्फ माइंड में स्ट्रांगली सेट कर लेते हैं. तो ये क्लासिफाई कर देता है कि इससे पहले जनरल पार्ट है, इसके ये पूरा का पूरा जो है ना ये एपलेट पार्ट है, और इसके बाद का जो पार्ट वो ओरिजिनल. तो 3-4 पॉइंट को हम सेट करते सो दैट उसको रेफर करके हम सारे नंबर को लोकेट कर लेते हैं. उनको रूल्स जो हमारे काम का है, हम सबसे पहले पॉइंट आउट करेंगे, दैट इज 16 and 24, and next is the 47 and 48.
is 47 and 48. 47 is dedicated to review petition and 48 is dedicated to curative. Both are the very important part. दोनों में 4 या 5 rules हैं, एक में 4 है, एक में 5 rules हैं, and both are high frequent and high probable for the advocate or record examiners. So सबसे ज्यादा frequency यदि किसी की देखी गई है तो order 4, 47 and 48. But anyway, for the sake of memorizing or for the sake of order in mind, कि कैसे arrange करते हैं, this order 47, 48 and 16 and 24, these 4 figures are the important. यानी आप 4 corner set करना चाहें या एक line set करना चाहें, उस लाइन में एक है 16 और दूसरा है 24. स्टार्टिंग पॉइंट इज 16, एंड पॉइंट इज 24 और इसके बीच में सारे के सारे एपलेट ज्यूरिडिक्शन है. इसके पहले जो भी है जनरल पार्ट है, इसके बाद जो कुछ भी है स्टार्ट हो जाता है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. Am I clear up to this point? So let us talk one by one original jurisdiction and appellate jurisdiction. First of all, I would like to talk about the appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction के start करते हैं, that is 1, 2, 3. 1, 2, 3 means first 3 order which is dedicated to the general purpose of appellate jurisdiction. So it's a start. So 1 to 3 यदि 16 से काउंट करना शुरू करें तो it would be 16, 17 and 18. So 16, order 16, order 17, order 18 is dedicated for the general purpose. Now अब पेयर में चलेगा. 3 category of appellate provision is provided. It is appeal, SLP and some special order. So for the purpose of appeal, one order is dedicated to the civil appeal, then criminal appeal, then SLP civil, SLP criminal, then general purpose 2 order is dedicated. Let us take in order and put the number to them as per the Supreme Court rules. Civil appeal and civil appeal and criminal appeal. As we had seen after starting from 16, 18, 19 was booked for the general purpose, left 19 and 20. So 19 and 20 is dedicated to the civil appeal and criminal appeal. Then SLP, 90-20 booked now. So 21 and 22 is dedicated to, allotted to civil SLP and criminal SLP. And 23 and 24, which is left in that slab or block or section, that is dedicated to Advocate Act and Consumer Protection. So यदि मैं इस तरीके से ब्रेन में रखूं कि चलो 16 और 24 के बीच में 3 स्टार्ट होता है, दैट इज 17, 18, 19. देन सिविल अपील, सिविल क्रिमिनल अपील, सिविल एसएलपी, क्रिमिनल एसएलपी, एडवोकेट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ऑर्डर इज 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. सो 19, 20 यानी 20 को भी रिमार्क लें तो 20 से पहले का 19, 20, 21, 22, 23, 24. Just think about it. So the appellate jurisdiction के ऑर्डर कहाँ है और किसके लिए कौन सा ऑर्डर डेडिकेटेड है? Now this is not difficult to recall it. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Now I am moving to the appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction में एक नंबर है, हम सिर्फ उस नंबर के अराउंड और सराउंड हम थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं. That number is 13. थोड़ा सा एनालॉग क्रिएट करने के लिए मैं एक इक्वेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ. इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है एग्जैक्टली.
13, even part 3, that is the original jurisdiction, it is divided into various part, that is the original suit A original suit, B petition under article 32, C application for transfer cases, D references, E election petition. अब जरा ध्यान से देखेंगे पार्ट 3 को. It comprises order, of course after 24 is 25, and before review this is the 46. So this is running from 25 to 46, divided into 5 parts, and that part is A, B, C, E and E. A part is original, totally dedicated to food, article 121. E part is dedicated to red, that is article 32. E part is dedicated to TP, transfer petition, under article and provisional. And E part is dedicated to the reference system, and E part dedicated to the election. Is that clear? Let me recreate it again and try to establish some patterns so that we can remember this very clearly. If you will count the number of order allotted to the suit, that is the 30. Meaning thereby, started from 15 and end with the 30. End with adding 13 orders, it would be the last order number for the suit, it would be 37. 25 से 37 तक का जो ऑर्डर है ये है सूट के लिए, और एक ऑर्डर डेडिकेट किया गया है दैट इज 38, इट इज फॉर 32. However, order dedicated to the TP, that is 3, that is 39, 40 and 41. 40 को यदि आप रेफरेंस बनाएं, उससे एक पहले और एक बाद 39 and 41 ही होता है, and that is for the TP के लिए यदि आप 40 को लोकेट करें, उसके पहले और बाद में TP एक और पैटर्न में इवॉल्व करूंगा. And D reference के लिए there are 42, 43, 44 and 45. And if election petition के लिए that is here, उसके लिए एक order dedicated है. इन सबके बीच में जब मैंने पैटर्न ढूंढने की कोशिश की जबरदस्ती, तब एक पैटर्न इवॉल्व होकर के आया, कि मेरे नॉलेज में आया, वो मैं आपके साथ करूँ. सूट के लिए 13 ऑर्डर डेडिकेटेड, स्टार्टेड फ्रॉम 25 to 37. अब 13 वर्ड को यदि देखें तो इट कंप्राइजेस 1 and 3. मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ 1 and 3 का. ये देख के मैंने लिखा है कुछ वर्ड्स में, विजिबल टू यू. Yes, sir, visible. मैंने लिखा है 13. 13 comprises two number 1 and 3. Once I will write 1 and 3, it will come 4. Isn't it? Same pattern is evolving around all these part A, original jurisdictions part A, B, C, D, and E. Meaning thereby, first is suit, then is 32, then is TP, then is reference, then is CP. So suit is allotted 13 order, then first number, that is the 13 itself. First number of the 13 is 1,
So next, original jurisdiction allotted to under Article 32, one order, that is the order 38 only. Then the number is 3, which is allotted to TP 39, 40 and 41. Then after summing them, it gives us 4. So 4 order is dedicated to the references. And last order is left into the slab, it is allotted for the election petition. फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ, 13 ऑर्डर सूट को अलॉट किया गया है, 13 नंबर है, उस नंबर का पहला वर्ड, पहला नंबर 1 है और अगला 1 ऑर्डर डेडिकेटेड टू द सूट। यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में हम जाएं तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन को एज पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इंटायर ओरिजिनल जुरिडिक्शन को 1 इज सूट, 2 इज what is the original part after suit, that is the 32 fundamental right, suit then fundamental right, then after that what, the transfer jurisdiction, then references, and at last the election petition which is coming through the statutes. फिर से मैं रिपीट करूं, suit under article 131, writ or PIL under article 32, transfer petition 139 eccentric, references, and then election petition. So this part dedicated the 13 order. This part dedicated 1 order. The first word, first number of the order, number 13. This part dedicated to 3 order, and this part dedicated to 4 order, and finally 1. So ब्रेन में सेट करने के लिए ऑर्डर 25 से 46 तक को यदि हम सेट करें, इसमें भी एक रेफरेंस लाइन ढूंढते हैं और वो रेफरेंस लाइन ऐसा होता है जो हैपेजर्ड ना हो। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का जो रेफरेंस लाइन आप ढूंढेंगे, वो रेफरेंस लाइन को आप सेट कीजिए एट 40। 40 इज द ट्रांसफर पिटिशन का मिडिल पार्ट, उसके एक पहले 39, उसके एक बाद 41। सो 39, 40 एंड 41 3 ऑर्डर डेडिकेटेड हैं टीपी को, एक 40 से पहले एक 40 के बाद। जब यहाँ लोकेट करते हैं, इसके रेफरेंस में आप सूट भी पहुंच जाएंगे 38, क्योंकि इससे सी एक पहले 38 है सूट, और इसके 4 बाद जो रेफरेंस है ना, उसके बाद लास्ट जो 46 है, दैट इज डेडिकेटेड फॉर द इलेक्शन। सो माइंड में जब आप सेट करेंगे और अब आप पूछना चाहेंगे, मैंने आफ्टर दैट मच डिस्कशन ऑफ हाफ एन आवर, मैं यदि कहूं कि आर यू एबल टू लोकेट कि कौन सा ऑर्डर कहां है? Yes, sir. Yes, sir, we can. Let us recreate the exercise and complete all this part. यदि मैं कहूं एपलेट जुरिडिक्शन, तो उसको आप रेफरेंस, ये तो पक्का है कि आउटर लिमिट क्या है उसका, दैट आउटर लिमिट स्टार्ट फ्रॉम 16 एंड एंड एट 24। ये आपको ब्रेन में रखना है। और दूसरा रेफरेंस पॉइंट आपको लेना 46, 47, सॉरी 47, 48, 47 फॉर रेफरेंस, 48 फॉर दैट, और तीसरा लैंडमार्क बीच में आपको इवॉल्व करना है, दैट इज 40। सो 3 पॉइंट प्राइमरली बेसिकली आप ब्रेन में रखें सेट करके। वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर दैट इज 16, 24, 46, सॉरी 47 और 48, और बीच में जो रेफरेंस इस इन बिटवीन, यदि 2 रेफरेंस हम लेने की बात करें तो 2 रेफरेंस आपका 20 और 40। क्यों 20 और 40? 20-40 बहुत शार्प नंबर है, बहुत मतलब मल्टीपल हो जाता है डायरेक्टली, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड राउंड फिगरिंग जो भी कहते हैं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये हमने जबरदस्ती सेट करने की कोशिश की।
20 के बाद का 2 नंबर और 19-20 बहुत इंपॉर्टेंट। 19-20 किसको डेडिकेटेड? सिंपली थिंक इट, सिविल अपील एंड क्रिमिनल अपील। 19-20 फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट हम जो पिक कर रहे हैं, और दूसरा उसके बाद का जो 2 नंबर है दैट इज व्हाट? SLP सिविल एंड SLP क्रिमिनल। सो दैट 20 इज द इंपॉर्टेंट ना, फॉर द पर्पस ऑफ रिमाइंडिंग आवरसेल्फ एंड अपने ब्रेन को कन्विंस करने के लिए। दूसरा उसका डबल पार्ट 40 पे जाते हैं, तो 40 से जो कनेक्शन है वहां पर 1-2 दैट इज फॉर द TP, एंड TP के लिए +-1 है, यानी +1 यदि करें दैट इज द 41, इट्स अगेन TP, एंड 39 इज अगेन TP। और उससे थोड़ा और पहले आ जाए ओरिजिनल जुरिडिक्शन दैट इज 38। सो 2 रेफरेंस हमने एग्जैक्टली थ्रू आउट एक पॉइंट को पॉइंट आउट किया है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये 2 रेफरेंस, और वो दोनों रेफरेंस 20-40, सो दैट कि आप क्रिएट कर लें। यानी 4 पॉइंट हम निकालना चाहें जिस पे सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए, और बिना सोचे समझे हम इसको लोकेट। जस्ट अ मिनट। मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का आउटर लिमिट आप ब्रेन में रखें। पहली बात, 4 ऑर्डर को आप बिल्कुल बाय 1 शॉट बिना किसी थॉट का आप रिकॉल करें, और वो 4 ऑर्डर है 20, 40, 47 एंड 48। दिस इज द 4 कॉर्नर। और बाकी सारा इसके आगे पीछे रेफरेंस करें। 20 के आगे कितना कौन है, पीछे कितना कौन है, 40 के आगे पीछे कैसे है, एंड 47, 48 इटसेल्फ साइमल्टेनियस। अपने आप सारा ऑर्डर आपके ब्रेन में, ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्डर विच इज द हाई फ्रीक्वेंट, वो आपके ब्रेन में आ जाए। एग्जामिनेशन में आंसर लिखते समय पर्टिकुलर रूल आप भले ही भूल जाएं, ऑर्डर आप नहीं भूलेंगे। सो सम सॉर्ट ऑफ उस पर्टिकुलर एरिया या डिस्ट्रिक्ट या विलेज जो भी कहें, वहां तक आप मान ले जाएंगे तो गलत नहीं होगा। मतलब ये प्रेशर नहीं जाएगा कि आप बिल्कुल नहीं जानते, अब ये जाएगा कि आप याद हो सकता है, मतलब यू नो सम सॉर्ट ऑफ थिंग कि जानता है। हाँ सर प्लीज। सो 40-20 को यदि हम क्रिएट, यदि मैं सीधा सीधा आपसे पूछूं कि इलेक्शन पिटीशन के लिए कौन सा ऑर्डर डेडिकेटेड, या एडवोकेट एक्ट के लिए, और एडवोकेट एक्ट के लिए कौन सा ऑर्डर डेडिकेटेड, तो एडवोकेट, पहले मेरे ब्रेन में सवाल ये आएगा कि एडवोकेट एक्ट एपलेट ज्यूरिडिक्शन है ना, या फिर इलेक्शन पिटीशन सिविल ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। सो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन वाले कंपार्टमेंट में ढूंढेंगे, और एपलेट वाले कंपार्टमेंट में ढूंढेंगे, और वहां को जो लोकेट करेंगे तो 20 के बाद 21, 22, 23 हो जाएगा। So order 30 is dedicated for the Advocate Act. Order 24 is dedicated for the consumer protection. Am I clear up to this point or not? ये बहुत ही बकवास सी बातें मैंने आज की है जिसका लॉ से कोई कनेक्शन नहीं है, एक पैटर्न से कनेक्शन है which is part of the convenience for your मेंटल अरेंजमेंट। सबके अपने अपने होंगे, बट ये मुझे थोड़ा सा लगा कि रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल है। So that's why I created that analog to recall the entire this Supreme Court rules. और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स का ऑर्डर 5, 6 and 7, sorry 4, 5 and 6. 4 is the advocate, 5 is the chamber in business, and 6 is the constitution of division court and power of single judge.
इसको जरूर देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही नेसेसरी इंग्रेडिएंट है ऑल दीज थ्री। एडवोकेट मींस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहाँ पर है, क्या है, कैसे हैं, इनका क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। सो डोंट फॉरगेट दिस पार्ट। सर सर ऑर्डर 3 रूल 8 उसमें भी पावर एंड ड्यूटी लिखा हुआ 6, तो और एक ऑर्डर 3 रूल 8। हाँ सर, लेट मी चेक इट अप। ऑर्डर 3 Order 3 के rule 8. In addition to the power conferred by these rules, the registrar shall have the following duties, powers subject to in any general or special order of the Chief Justice, namely, that require any plain petition, appeal petition or order proceedings presented to the court to be amended in accordance with the practice and procedure. Yes, इंटरेस्टिंग है। तो इसको हम कब लिखेंगे सर, क्या किस तरह का क्वेश्चन आए? आपको लिखना है इसको, ये आपका सेंट्रिक है। एग्जामिनर इस पे कितना वेट दे, देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, लेट अस कम इनटू द डिस्कशन। मेरा एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू इन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जितने भी प्रोविजन यूनियन जुडिशियरी में जो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है, ये वर्ड एग्जाम में बड़ा रेयर पूछा जाता है। मतलब एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जो प्रोविजन ऑफ लॉ में एक्सप्रेस्ड वर्ड दिया हुआ है उसको इंटरप्रेट करने की बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। फाइंड आउट किया जाता है उसका इम्प्लाइड पार्ट क्या क्या है। कोर्ट की जो एक्सरसाइज होती है यूजुअली, एंड आई कैन से फ्रीक्वेंटली, तो वो गलत नहीं होगा, और मोस्टली कन्फाइंड टू द implied part, interpretation of the implied part of the provision। और एग्जामिनेशन का पैटर्न एंड क्वेश्चंस देखें। भरत जी, आप एबल हैं अपना कुछ मटेरियल शेयर करने के लिए या नहीं? हाँ सब शेयर कर देंगे, बताइए। मैं 2 डॉक्यूमेंट शेयर करना चाह रहा था रिगार्डिंग एक कंपाइलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के 18 पेज के हमने कुछ बनाए थे। डू यू हैव विथ यू? लेट मी चेक। 10 years क्वेश्चंस के एनालिसिस। एक सेकंड। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं भी देख लूं, शायद मेरे मोबाइल में। 2021 PYQP एनालिसिस P1 सर। प्लीज आप उसको शेयर करें। यस सर। कर दिया? हाँ सर, कर दिया सर। एक और डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं मैं, एंड दैट इज कंसर्न टू द एनालिसिस ऑफ दिस थर्ड पेपर। ये जो पेपर है एनालिसिस नहीं, इसका थोड़ा सा और ऊपर, इसके 3rd पेज पे जाइए। जी 3rd पेज है। Yes. On that point of time, मनिंदर सिंह जो अभी हमारे ले रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लिया था और उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन सेट, मैंने एक फ्लेवर दिया था कि ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस। 4th पेज पर आइए।
उन्होंने सर्टेन रेफरेंस लीडिंग केसेस भी बतलाए थे, इसको भी पार कीजिए। ये टेबल रहने दीजिए, ये टेबल रहने दीजिए, बस ये टेबल मुझे दिखा दीजिए। मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा ये शेयर करना चाहता हूँ, ये टेबल है क्या। मैंने क्या किया, आप देखेंगे कि एक साइड में 2009, 2010 एंड 2019 इतने साल के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के क्वेश्चंस उठाए, इंटायर क्वेश्चन। और इंटायर क्वेश्चन में मैंने फाइंड आउट किया कि आर्टिकल 32 से कौन कौन से क्वेश्चन है और कितने मार्क्स के। फिर मैंने पिकअप किया 136 के कितने क्वेश्चंस के, कितने मार्क्स के हैं। 137 दैट इज रिव्यू एंड क्यूरेटिव बोथ, इसमें कितने कौन कौन से क्वेश्चन किस साल में और कितने नंबर के पूछे हैं और टीपी से कितने पूछे हैं। यही पॉइंट मैंने क्यों पिकअप किया, उसके पीछे रीजन था कि दीज आर द रेमेडियल प्रोविजन। यहाँ से ड्राफ्टिंग भी मैप होता है और साथ में आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी मैप। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कितने क्वेश्चंस इससे पूछे गए, या फिर बस उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को ही हम देखें। मैंने देखा कि हर साल ये चारों पॉइंट जो है ना फोकस्ड होता है। आप जरा देख लीजिए 9 में पहला कॉलम पॉइंट 1 रो में है। 2009 में 20 नंबर के पूछे गए थे 32, 20 नंबर 136, रिव्यू क्यूरेटिव 20 एंड टीपी 20, यानी 80 नंबर के क्वेश्चन यहीं से कर पाए। 2010 में देखने उधर छोड़ दीजिए, नए पैटर्न पे आ जाइए जो हमारा 18, 19 के बाद 17 के बाद होता है। इसमें वो मार्क्स का जो पॉइंट था ना वो रिड्यूस करता चला गया। पहले 20 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। नाउ द क्वेश्चंस आर ब्रेकअप इनटू द वेरियस पार्ट, दैट इज 8 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 16 और 14, 17 में। फिर उसके बाद एक का क्वेश्चन नंबर 18 में, एंड सो एंड सो फोर्थ आप देख सकते हैं। इवन 19 में भी क्वेश्चन 2 भी जो 10 नंबर का था वो रेट से था, एंड 8, 4 एंड 6 जो कि एसएलपी से था। 137 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे, रिव्यू क्यूरेटिव क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8 10 मार्क्स के। सो द पॉइंट इज दिस, व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट, कि यदि मैं 4 आर्टिकल पे फोकस करूं तो कितने मार्क्स को मैं साधूंगा एक साथ। मुझे लगा ये रेमेडी वाले प्रोविजन के सारे पैरामीटर्स को यदि मैं कैप्चर करूं, निश्चित रूप से ये सिलेबस का पूरा हिस्सा नहीं है, बट फिर भी 80% जरूर वो कवर अप करेगा जो यहाँ दिख रहा है। इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो नीचे है, नीचे वाला पेज जरा इसको दिखाइए एक बार, जस्ट नेक्स्ट पेज। सर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टेबल है ना इसके प्रूफ में डिटेल्स पार्ट है। ये देख लीजिए, ये मैंने एग्जैक्टली 2009 के क्वेश्चन को पूरा रिप्रोड्यूस किया है, और ये जो ऊपर वाला फर्स्ट टेबल बना हुआ है इसके ऊपर, ये मेरा एडिशन है, और इसके बाद एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस क्वेश्चन है। अब जरा आपके कन्वीनियंस के लिए, यानी 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये टेबल में आप देखिए, पहला कॉलम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 A to D जो कि 20 नंबर का है, वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर 4 डेडिकेटेड। अब आप दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो A to D है, 20 नंबर का है, वो मिक्स्ड है, मतलब यहां से भी वहां से भी वहां से भी। क्वेश्चन नंबर 3 जिसके सब क्वेश्चन एक भी नहीं है, वो 20 नंबर का है और 139A से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 A to C में डिवाइडेड है, 20 नंबर का है जो 32 से रिलेटेड, 30 एंड सो फोर्थ। यानी यहाँ जो कैटेगराइजेशन हुआ सारे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन किस पोर्शन से लिया गया है, ये क्वेश्चन किस पोर्शन से लिया गया है, ये 2009 जितने साल के हैं पूरा टेबल नीचे दिया हुआ है, कंप्लीट एनालिसिस है। और इसमें थोड़ा सा और ऊपर कीजिए भरत जी।
ये सारे क्वेश्चन एक कॉलम में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, क्वेश्चन रिप्रोडक्शन है, लास्ट कॉलम मेरा मतलब इंसर्ट किया कितने नंबर का है और कौन कौन पार्ट से कनेक्टेड है। ये मैंने एक्सरसाइज किया और जिसका कंक्लूजन दो तरीके से मुझे फायदा मिला। एक ये समझने में कि क्वेश्चन का नेचर क्या होता है और कितना टाइम मुझे अलॉट करना चाहिए उसके, टाइम मैनेजमेंट, नेचर ऑफ क्वेश्चन, और दूसरा कौन सा फोकस एरिया है, मुझे कहाँ फोकस करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, यानी कौन सा इकोनॉमिकल एरिया है। कोई एरिया ऐसा होगा जो हम बहुत सारा फोकस भी करें और बहुत कम मार्क्स मुझे मिले, तो वो लास्ट मोमेंट में इकोनॉमिकल नहीं होता, इंपॉर्टेंट सारे हैं। सो इससे मुझे ये हेल्प मिली। और उसके बाद मैंने एक और अटेम्प्ट लेने की कोशिश की। मैंने क्या किया कि जितने साल में पूछे गए, पहले तो पूरे क्वेश्चंस को एनालाइज किया जो इस ऑर्डर में सारे क्वेश्चंस हैं। फिर मैंने क्या देखा कि रिव्यू एंड क्यूरेटिव बड़ा स्पेशल है और बहुत छोटा भी और बहुत इम्पोर्टेंट भी इस कोर्ट के लिए। तो मैंने सिर्फ रिव्यू और क्यूरेटिव से कितने क्वेश्चन पूछे गए उसको एक जगह कंबाइन, वो है पेज नंबर 4 पे। भरत जी जरा ऊपर जाइएगा, पेज नंबर 4, उस टेबल से ऊपर, वो जो टेबल मैंने दिखाया ना उसके ऊपर का पोर्शन, यस, और उसके ऊपर, इसके ऊपर का पार्ट थोड़ा और नीचे, यस यस यस, यही टेबल, थोड़ा सा और नीचे, पहला पोर्शन उसका और नीचे नहीं, ये 10 और ऊपर का दिखाई, ऊपर का दिखाई, पेज 4 का पहला पोर्शन, फर्स्ट पार्ट, और ऊपर थोड़ा और है ऊपर, यस डन। इसमें मैंने लिखा है आर्टिकल 137 में रिव्यू होता है, मैंने उसी में क्यूरेटिव को भी काउंट किया हुआ है। इट्स माय ओन कन्वीनियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, डोंट टेक इट अदरवाइज, आप उसके तरह से अलग कर सकते हैं। और इस 137 से रिलेटेड दो ही लीडिंग केस लीड करता है, दैट इज AR अंतुले एंड अशोका रूपाहुरा इन लीडिंग केस, इसलिए मैंने इन दोनों को लिखा। उसके बाद मैंने कुछ और वर्ड्स लिखे कि आर्टिकल मैंने हायरार्की करें, एक आर्टिकल देखें तो उस आर्टिकल का कोर इंग्रेडिएंट अलग अलग होता है, इम्प्लाइड इंग्रेडिएंट होता है, उसका नेचर, स्कोप, लिमिटेशन, इंस्टांसेस, एंड प्रैक्टिस में जाए तो रूल्स, रेगुलेशन, प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और प्रैक्टिस इन एग्जिस्टेंस। यही दो डायमेंशन है जहां से क्वेश्चन पिकअप होते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। मैंने क्या किया, क्वेश्चन जब पिकअप किया तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेपर 4 ऑफ 2000, सॉरी इधर लास्ट वाले कॉलम में देखेंगे लिखा हुआ 10 2008 7 54, ये सारा इंडिकेशन है। 10 मीन्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 2008 मीन्स 2008 में पूछा गया है, 7 मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 7 है ऑफ पेपर 4। सो ये पार्ट कंप्लीट लोकेशन है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ पेपर 4, लीडिंग केसेस ऑफ 2008 which having the 10 marks, and this is the question. Write short notes and doctrine of per inquirium with special reference to AR। ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। सो सिर्फ रिव्यू क्यूरेटिव के क्वेश्चन को वो सारे टेबल से सारे साल से मैंने पिकअप किए और एक जगह कंपाइल किए। मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ऑल इंटायर डाइवर्स क्वेश्चंस इन सारे में आ जाते हैं। मैंने जैसे भी पूछना होगा यहीं से इतना से ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की जरूरत है। सो इस पॉइंट, इस सारे क्वेश्चंस के आंसर को यदि आप पिकअप कर लें, देन सर्टेनली रिव्यू क्यूरेटिव से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन है, आइदर इन पेपर 4 और इन पेपर 2 और इन पेपर 1, इन सब जगह पर इसकी सॉल्यूशन निकाली जा सकती है और बहुत ही कंफर्ट जोन में यू विल फील योरसेल्फ। सो ये एक एक्सरसाइज था फॉर द पर्पस ऑफ द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। और थोड़ा और ऊपर कीजिए भरत जी, थोड़ा सा और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट पेज जो मैंने टेबल बना रखा है, this page
हाँ, ये टेबल पे रखिएगा, ये टेबल पे रखिएगा। मैंने देखा, ये टेबल जरा इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा कि दीज आर द हाई फ्रीक्वेंसी जोन फॉर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, यानी पेपर 1। 32, 129, 129 मैंने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंटली पूछता है। 139, 136, 137, 139A, 141 एंड 142। आप इस सारे पॉइंट को जब आप कवर करेंगे और प्योरली इसके इनहेरेंट पार्ट को जब आप समझेंगे, निश्चित रूप से 80 to 90% क्वेश्चंस आपका यहीं कवर हो जाएगा। एंड लास्ट में फर्स्ट में ही मैंने लिखा है SCR, SCR मीन सुप्रीम कोर्ट रूल्स। सो इसके अलावा यानी पूरे कंपार्टमेंट को आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 7 आर्टिकल्स प्लस सुप्रीम कोर्ट रूल्स। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में सम सेलेक्टेड आर्टिकल, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया विद द रेफरेंस ऑफ ऑर्डर 20 एंड ऑर्डर 40। ऑर्डर 20 के आगे और 19 एंड 20, 21, 22, 23, 24। 23, 24 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है, बट 23 इज इम्पोर्टेंट, 23 इज इम्पोर्टेंट फॉर द पेपर 3 ऑल्सो। एंड इधर आ जाए 40, दैट मीन्स 39, 38, 39, 40, 41 and this 47, 48 and order 4. So these are the high probable, मतलब highest probable यदि आप कहें ना तो वहां पर दिखेगा। Always this article read with their own rules and regulations. इस पर्टिकुलर आर्टिकल को जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, ये कंप्लीट बिल्कुल नहीं होगा जब तक कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के थ्रू ना जाए। इसको सप्लीमेंट करते हैं और जब वो पूरा करेंगे तब एक कंप्लीट फीलिंग आपके मन में आएगी। अदरवाइज दोनों को आइसोलेशन में यदि छोड़ेंगे तो वो कंप्लीट फीलिंग नहीं आएगी। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और रूल का, सुप्रीम कोर्ट रूल्स का बहुत बड़ा रोल है और इसलिए उसका दोनों का कंबाइंड जरूर। सर माइक किने का खुला हुआ है, आवाज माइक किने का खुला हुआ है। ठीक है, कर लेता हूँ। So the point is this, then I thought कि मैंने एंटायर पेपर के लिए मिनिमम कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनको समझना जरूरी है, जो सारे पेपर पे कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट डालते हैं। मैंने इतना आर्टिकल मिनिमम करो तो ऑलमोस्ट सारा पेपर कवर होता है। आप देखिए आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 19 एंड 21, इसके बगैर आप ड्राफ्टिंग का रिटन PIL वाला जुरिडिक्शन मुश्किल होगा। राइट तो पता होना चाहिए, तभी तो उस राइट के प्रोटेक्शन के लिए अप्रोच करेंगे। सो दीज आर वेरी स्मॉल और प्यारा सा आर्टिकल है और इससे रिलेटेड कई लीडिंग केसेस में भी जिसका ये जेनेसिस है। सो दैट इज द फंडामेंटल राइट से 5 फंडामेंटल राइट्स को मैंने पिकअप किया जो हाई प्रोबेबल है। स्पेसिफिक रेमेडीज बिफोर सुप्रीम कोर्ट, उससे मैंने 5 आर्टिकल पिकअप करने की कोशिश की जो टेबल सपोर्टेड है आपका। 32, 129, 129 is the contempt, 136, 137 is the review curative and 139। Now original and appellate jurisdiction में जाएं तो ये 131, 132, 133, 134 and 134A है। इन तीनों से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो 2 डायमेंशन। 1, इसका इम्प्लाइड पार्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। ये तीनों वर्ड आपको यही इन सारे आर्टिकल 32 से 34 तक मिल जाता है। सो यहाँ से ये क्वेश्चन पिक किया था व्हिच इज इम्प्लाइड क्वेश्चन, नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन। और दूसरा पार्ट ये है कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इम्प्लाइड क्वेश्चंस को आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यदि आप तैयार ना हो तो, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर सकते हैं। उसका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्टली आर्टिकल से मैप होता है। विद द रेफरेंस यू कैन डू दैट। सुप्रीम कोर्ट के पावर्स, जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बनाता है, दीज आर द प्लीनरी पावर्स and these are also the part of basic structure which can't be altered by the parliament,
by any constitutional amendment. That is the Article 141, 142, 143, 144 and 145. 145 somewhere legislative power है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स आया हुआ है, और इसके अलावा कुछ पार्ट है जिसकी जरूरत ज्यादा होती है, दैट इज आर्टिकल 226, 227, क्योंकि रिट वहां से जब आएगा आपके पास हाई कोर्ट से रिजेक्ट होकर के, तो वो उसके जुरिडिक्शन को लोकेट करने के लिए वो जुरिडिक्शन को पार किया या नहीं, इसके लिए आपको इसकी समझ थोड़ी होनी चाहिए। और कोर्ट का एक अलग रेप्लिकेशन जो ट्राइब्यूनल के तरह क्रिएट हुआ, दैट इज द 323A एंड 323B, और अल्टीमेटली इंटायर basic structure doctrine is about the interpretation of two article, that article 368 and article 30, इसी दोनों का इंटरप्रिटेशन पे कन्फाइन। सो कुल मिलाकर के मुझे लगा कि इतने आर्टिकल को पहले समझा जाए कोड पे, उसके बाद यदि कहीं भी हम मूव करें तो इसके रेफरेंस में आराम होता है, कंफर्ट जोन फील होता है। और पेपर 1 ही नहीं, ये जो पूरा टेबल दिख रहा है हाई फ्रीक्वेंसी जोन अदरवाइज दिस, ये इसकी समझ इस पर्टिकुलर सेंस में आर्टिकल, कोर इंग्रेडिएंट, इम्प्लाइड इंग्रेडिएंट, नेचर, स्कोप, लिमिटेशन, इंस्टांसेस, यानी आपको लिमिट का कई बार क्वेश्चन पूछता है इसका नेचर क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, इसका लिमिटेशन क्या होता है, ये ऐसा कब हुआ, एक घटना का रेफरेंस देना इंस्टेंसेस होता है। तो इन सारे चीजों के फॉर्म में यदि आप सोचेंगे सराउंडिंग टू दिस, तो एक कंप्लीट सेंस ऑफ फीलिंग and confidence for all paper brain में आता है। That's what I want to say, not more. और दूसरा मैंने अभी अभी शेयर किया है एक और, जो इसी तरीके की एक्सरसाइज मैंने की थी फॉर लीडिंग केसेस, सॉरी प्रोफेशनल एथिक्स। भरत जी जरा उसको पिकअप करें या मैं करूं? व्हाट्सएप पे शेयर किया क्या अभी आपने? अभी तुरंत किया है व्हाट्सएप पे, जरा चेक कीजिए। सर इस ग्रुप पे चेक किया है। एक मिनट, लास्ट कॉल सर। हाँ, ये प्रोफेशनल एथिक्स। एक चीज और पर इसको हटाइएगा नहीं, एक चीज और हम डिस्कस करना चाहते हैं, थोड़ा सा वो टाइम स्प्लिट जोन पे जाइएगा, टाइम स्प्लिट जोन पे, इसका पहला पेज है। देख पा रहे हैं सर? हाँ, ये वाला ये हाईलाइटेड पोर्शन है। दिस इज द टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इसका दो डिफरेंट ये, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा था। रियल टाइम एनवायरनमेंट प्रैक्टिस, जो आप अपने घर में बैठ करके इसके प्रैक्टिस को अपने ब्रेन को और अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। इसमें आप देखिए 3 घंटे का पेपर होता है, और सारे घंटे के पेपर को यदि 2 ब्लॉक में हाफ एन आवर में ब्रेक करें, तो हमारे पास कितने ब्लॉक होते हैं? टोटल 6 ब्लॉक होते हैं टू द परफॉर्मेंस, एकदम बैक टू बैक, बिना किसी गैप का, डायरेक्टली ये। और एक ब्लॉक जो आधे घंटे का है, जो मैंने टाइम यूनिट वाले कॉलम में लिखा है, 30 मिनट का ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 और ब्लॉक 6। और हर ब्लॉक में 2 प्रोबेबिलिटी है, एक ऑब्वियस परफॉर्मेंस का जो मोड होता है और एक अलर्ट परफॉर्मेंस का मोड, जो आप अपने आप को अलर्ट करेंगे, जो ऑप्टिमाइज्ड होगा। सो इन द ऑब्वियस मोड, जब आप टाइम को ब्रेक करते, फिर से आप समझिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस टाइम ब्लॉक को, हमारे पास 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में पूरी परफॉर्म करनी होती है एंड अप। उसके बाद ये टाइम ब्रेकअप करके हमको नहीं मिलता, ये कंसोलिडेटेड होता है एक साथ, बैक टू बैक। इस 3 घंटे को हमने आधे आधे घंटे के ब्लॉक में फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस थोड़ा सा ब्रेक करके समझने की कोशिश की। तो फर्स्ट आवर को 2 ब्लॉक में ब्रेक किया, सेकेंड आवर को भी 2 ब्लॉक में ब्रेक किया, थर्ड आवर को भी 2 ब्लॉक में ब्रेक किया। आप जरा इमेजिन कीजिए कि हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट एंड वर्स्ट का जो है ना, वो कैसे आता है। दोनों सक्सेसफुल रेंज में आता है यदि इफ यू कंप्लीटेड। पहले हमारा पेन बड़ा धीरे धीरे चलता है और लास्ट में फुल स्पीड में आ जाता है। अब जरा देखिए,
जब टाइम डिस्टर्ब होने लगेगा ना तो लास्ट में एकदम फुल स्पीड में चलेगा, चलो भाई इतना ही लिख दे, इतना ही लिख दे टाइप से, यदि टाइम मैनेजमेंट कोलैप्स होने लगे लास्ट में। फर्स्ट आवर में यदि 15 नंबर का मार्क्स आप लिख लेते हैं, यानी फर्स्ट ब्लॉक में देते, दैट इज द फर्स्ट हाफ एन आवर। और इस तरीके से देखें तो 15 मार्क्स 15 मार्क्स 15 मार्क्स 15 मार्क्स यदि करें तो 2 घंटे तक आप 60 नंबर का क्वेश्चन लिख चुके होते हैं, आंसर लिख चुके होते हैं, और आपके लिए 40 मार्क्स बचा होता है तीसरे घंटे में लिखने के लिए, जहां आपका पेन फुल स्पीड से कवर अप करता है, और आधे घंटे में 20 और आधे घंटे में हो सकता है, या इसमें यदि 15 मिनट लिखा गया तो आधे घंटे में आप पूरा 30 नंबर का लिख के आ जाए इन फुल स्पीड। ये समवेयर कहीं ना कहीं कंट्रोल आपके हाथ से निकलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 180 मिनट में 30 मिनट शार्प आप रिजर्व एंड क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए सेव करके रखें, और पहले ही से कोशिश कीजिए, जो आपकी आदत है परफॉर्म करने की, जो लास्ट मोमेंट में आधे घंटे में 20 नंबर को परफॉर्म करते हैं, वही स्पीड आप शुरू से मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, जो बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। एंड दैट इज कॉल्ड, ऊपर में 3 में लिखा हुआ है, रियल टाइम एनवायरनमेंट प्रैक्टिस। आपकी शुरुआत ये होनी चाहिए, आधे घंटे के लिए आप बैठिए ये सोच करके कि इस आधे घंटे में मुझे इस 20 नंबर के सवाल लिखने हैं, लिखिए। और निश्चित रूप से आप जितना कंफर्टेबली बैठ के लिखते हैं उतना कंफर्टेबली वहां नहीं लिखाएगा। वहां एकदम एग्जामिनेशन टाइम में इंस्टेंट डिसीजन जो है ना वो परफॉर्म करता है, ना कि आपका वेल थॉट प्रोसेस। सो बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में यदि आ जाए तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात, और आपने पूरी तरीके से अपने आप को ट्रेन कर रखा है, सिचुएशन इज अंडर योर कंट्रोल। मेरा यहाँ पर कहना यह है कि आधे घंटे की प्रैक्टिस से आप शुरुआत कीजिए, एटलीस्ट लिखिए सवाल के जवाब को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। आधा घंटा सेट होना चाहिए टॉप, और उसको जब आप लिखेंगे ना आपको समझ में, फॉर द पर्पस ऑफ टाइम मैनेजमेंट ओनली। एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 दिन आपको ये एक्सरसाइज करना होगा, और एग्जाम में जो चैलेंजेस आपने फेस करने हैं वो चैलेंज आपको अभी फेस करके रियलाइज करना होगा। इफ यू आर कंफर्टेबल देन इट्स ओके। और कई बार ऐसा होगा कि कॉपी चेक करने के लिए आता है, इवन पढ़ने का टाइम होता है, तो वो सारा टाइम नेक्स्ट लास्ट 30 मिनट नहीं कहेंगे, मतलब इन बिटवीन 30 मिनट्स पे कवर होता है। तो 30 मिनट के स्लॉट पे आप जैसे ही फोकस करेंगे, अपने आप को ट्रेन करेंगे, बहुत सारी डिफिकल्टीज जो ड्यूरिंग एग्जाम आती है वो नहीं आएगी। एंड दैट्स व्हाट आई प्रिपेयर्ड दिस टेबल। इस टेबल का थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा मुझे दिखाइए भरत जी। Although I always fail to follow this part because of certain reason कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, रियल टाइम प्रैक्टिस नहीं की थी, ये जेन्युइनली मैं आपसे एडमिट कर, तो सोचा मैंने ये होना चाहिए, लेकिन उसको रियलाइज नहीं कर पाया। अब सर इसको दिखाना है सर, ये वाला क्वेश्चन सबसे टॉप। हाँ, मैंने क्या किया, जिस तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के क्वेश्चंस को ब्रेकअप किया था, एनालाइज किया था वेरियस ईयर्स के, वही काम मैंने इनके लिए भी, प्रोफेशनल एथिक्स के लिए भी किया, जिसकी पूरी लिस्ट नीचे होगी। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि कौन सा फोकस जोन है, कहाँ मैं फोकस करूं, तो थोड़ा सा और ऊपर की, इसमें देखिए 5 इंपॉर्टेंट एरिया मुझे प्रोफेशनल एथिक्स में दिखा, उसको मैंने पॉइंट 2 पे समराइज कर रखा है, जिसको मैंने नाम दिया प्राइम फोकस जोन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड एनालिसिस। उसमें आया है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स, इससे एक क्वेश्चन डेडिकेट करते हैं, क्योंकि यही सिस्टम यहीं पे है, उसकी समझ आपको होनी चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड पार्ट। दूसरा है पार्ट 2, माने दैट इज प्राइम फोकस जोन नंबर 2, दैट इज बार काउंसिल रूल्स एंड एडवोकेट एक्ट। बार काउंसिल रूल्स का वो हिस्सा, वो पर्टिकुलर हिस्सा
जिसमें आपका कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसका वायलेशन डायरेक्टली इंपैक्ट करता है सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट एक्ट। मैं आपको बताऊं, सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट एक्ट और उसका कॉन्सिक्वेंसेस, जहां से कंप्लेंट और इनिशिएशन शुरू होता है और उसके कई ये है अपील है, सो फोर्थ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और फर्दर डेवलपमेंट कह लीजिए या फर्दर पार्ट है। सो इस दोनों पे ही 90% थिंग्स आर फोकस्ड इनटू दिस एग्जाम, क्योंकि ये दोनों चीज सेंट्रल पार्ट है, इसी के सराउंडिंग में सारा खेल चलता है। आप क्वेश्चन से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट समटाइम्स तीसरा पार्ट वो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फोकस्ड। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हमारा रोल है, वी आर फोकस्ड ऑन द केस, we are the custodian of our fact as well as law. So judges नहीं है, उनके लिए आप प्रेजेंट करें वही करना है, they are neutral. तो इस सिस्टम में आपका रोल क्या है, आपके अपोजिट पार्टी का क्या रोल है, लिटिगेंट का क्या रोल एंड लिमिटेशन है, एज वेल एज जजेस का क्या रोल एंड लिमिटेशन। ये डिफरेंट एंटिटी हैं जो वर्क करते हैं। नाउ ये सारा स्मूथ वर्क करें, सिंक्रोनाइज तरीके से सारा एंटिटी काम करे, डिस्टर्ब ना करे। सारे डिस्टर्बेंस को डिस्कार्ड करने के लिए चेक एंड बैलेंस दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट, इन द फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, एडवोकेट एक्ट एंड सो फोर्थ। आप यदि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं तो आपके ऊपर कितने तरीके की तलवारें लटक सकती है, ये जरा इमेजिन कीजिए। एक आप तो एडवोकेट है ही, एडवोकेट एक्ट तो आपके सामने है ही, वो सारा कंडक्ट आपके ऊपर अप्लाई करना, और रूल में ये लिखा हुआ है कि उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस डायरेक्ट इंपैक्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और यहाँ की आपकी कोई भी हरकत डायरेक्ट इंपैक्ट है वहां, क्योंकि यहाँ से आपके अगेंस्ट कुछ भी लिया जाता है तो आपको बार काउंसिल में भेज दिया जाता है। तो एडवोकेट एक्ट इज द वन पार्ट। अनदर थिंग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। So contempt of court act is general for the high court and other courts also. So उसमें भी एक प्रोसीडिंग्स खुल जाती है एक नए डायमेंशन पे, एक नए थिंग्स के लिए। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 129 रीड विथ 142 एंड आर्टिकल 215 जो कोर्ट को स्पेशल पावर करता है। और चौथा है सुप्रीम कोर्ट रूल्स में बना हुआ ऑर्डर 4 रूल 10 जो अनबिकमिंग के लिए ये प्यूनिटिव पार्ट। और जब आपके कंडक्ट की बात की जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन एक चीज नेसेसरली की जाती है कि यदि आपने गलत किया है तो आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, उसके लिए आप तैयार रहिए। वो आप समझ लीजिए। सो हर साल का जो क्वेश्चन है ना वो उस पॉइंट पे फोकस होता है, जो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। सो तीसरा पार्ट था एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ यहीं से आता है जो थर्ड पार्ट था, और जो ऊपर वाला भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं मैप। कुछ साल पहले जब वेंकट रमनी इस एग्जाम को लिया करते थे, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि मैंने कभी उस पेपर में बुरा परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने अच्छा अप्रिशिएट किया और मैंने जीने की थोड़ी सी कोशिश की थी। मतलब कल्टीवेशन ऑफ कल्चर, उनका वो कहना होता था कि समवन नॉट ओनली एग्जाम है, ये कल्टीवेशन ऑफ कल्चर है और आपको अपने आप में कल्टीवेट करते रहना पड़ता है। तो वो मैंने समझा। और इवन पर्सनल एथिक्स में जयदीप गुप्ता भी थे, उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से बतलाया नए डायमेंशन को। यू आर द कस्टोडियन ऑफ लॉ, यू आर द ओनली कम्युनिटी इज द फेटर्निटी द कस्टोडियन ऑफ लॉ। डिस्प्यूट रिजॉल्व मैकेनिज्म के कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हम कैसे, हमारा रोल क्या है आज के डेट में, आइदर इन मेडिएशन और इवन arbitration, these are the different form of dispute resolution mechanism.
सो कॉम्प्लेक्स पार्ट में हमारा रोल कैसे और कैसे हम उसमें प्योरली कंट्रीब्यूट करें। सो ये सारा स्पेशल पार्ट था जो मुझे टच किया और मैं उसको अपने कल्चर में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की रेदर देन वर्ड्स में रिफ्लेक्ट करने। बट वो था क्वेश्चन था 4 and 5 ethics, value, virtue, noble profession of law, 7 lamp of advocacy etc. इसका कुछ पार्ट अभी भी इंटैक्ट है, बट वेंकट रमनी के क्वेश्चन में ये डोमिनेटिंग पार्ट हुआ करता था। On that point of time, it was the period of 2015 to 2018. बहुत लोगों को सबसे ज्यादा स्ट्रगल इस पेपर में करना पड़ता था, बिकॉज इट वॉज द वेरी जेनेसिस ऑफ एंटायर प्रोफेशनल पार्ट। उनके नोट्स को समझना भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के समझने जैसा स्ट्रगल होता था, बट आई एंजॉयड एंड थैंक्स टू हिम। आज के डेट में जो क्वेश्चन फोकस है 1 and 2, 7 लैम्प ऑफ एडवोकेसी, यहाँ पे सर कैन वी आस्क क्वेश्चन सर? यस तुषार जी प्लीज। सर मेरे 2 सवाल हैं सर पेपर 3 को लेके सर। सर जैसे मनिंदर सर ने जैसे नोट्स शेयर किए थे ना, तो जो मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि सर केस लॉज इतने सारे रेफर किए हुए हैं, इट इज गेटिंग डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल द केस लॉज। एक चीज, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दैट इज द चैलेंज एंड दैट चैलेंज यू कैन सी इन माय आंसर शीट आल्सो। मेरे आंसर शीट में आपको मिलेगा, और वो बड़ा चैलेंज है। बट द थिंग इज कि एक केस के हेड नोट्स को यदि आप पढ़ते हैं और उसको आप साइट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस, उसके कितने लाइन आप वहां रिप्रोड्यूस करेंगे या कौन सा मैंने जेनेसिस है, आप पूरा जजमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। नीड टू रिमेम्बर एग्जैक्टली द काउस टाइटल और साइटेशन समवेयर। नहीं याद है, मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर इसको गलत तरीके से लेंगे। आप उसको रेफर करें बाय एनी मैनर, सो दैट कि वो पता चले कि यू आर अवेयर अबाउट दैट, और उस केस के अंदर क्या हुआ था इतना तो मैंने कंक्लूजन तो आदमी को पता ही होता है ना। जब हमने एक अंदर केस का याद को पढ़ा, सर, अंदर का याद रखने में दिक्कत एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम हो रही है। मनिंदर सिंह सर ने 19 पेज का डॉक्यूमेंट दिया है, एंड आई ट्राइड टू रीड दोस पार्ट। जितना सफिशिएंट रीजन था, फैक्ट ये है, लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूड ये कर दिया। इस कंडीशन में ये मिसकंडक्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। जो काम आप पूरे जजमेंट को पढ़ के आप या हम उसको छोटा कर करके समझें, वो पूरी तरीके से सारा जेनेसिस, यानी उन्होंने अपने टर्म्स में हेड नोट्स आपको दे दिया है। उस बहुत सारे जजमेंट एंड डिफरेंट फैसेट्स हैं, उससे ज्यादा फैसेट्स को इस एग्जामिनेशन में टेस्ट करना बड़ा चैलेंज है। इट कैन बी पॉसिबल। और मैं आपको बताऊं, मैं जहां तक मनिंदर सर को जानता हूं, वो अपने बैच के टॉपर रहे हैं। वो बिल्कुल अप्लाइड पॉइंट पे फोकस करते, एक रियल टाइम सिचुएशन क्रिएट करेंगे, यहाँ क्या अप्लाई होगा वो पूछेंगे। उसके लिए ये मैंडेटरी है कि आपको सारे केस लॉ की समझ होनी चाहिए। समझ, अंडरस्टैंडिंग की बात मैं कर रहा हूँ। क्या प्रिंसिपल, किस कंडीशन में उसको क्या अमाउंट किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, यही 3 कारण तो होता है। क्यों इज द रीजनिंग, है ना। उसको आपने पढ़ना है, 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करना है। व्हाट इज द रीजनिंग, व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट प्रिंसिपल अप्लाइड, एंड व्हाट इज द कंक्लूजन, एंड इन व्हाट कंडीशन। सारे केसेस जो उन्होंने दिए हैं उनको 3 कंपार्टमेंट में आप समझिए। एक, कि क्या केस था, फैक्ट क्या था। दूसरा, क्या कंक्लूजन निकला। और तीसरा, क्या प्रिंसिपल अप्लाई हुआ, क्यों निकला ये कंक्लूजन। ये 3 चीज को जैसे ही आप अलाइन कर लेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है, एक पेज में 2-2 केस दे रखा है और सबहेड भी दे रखा है। एटलीस्ट इतना काम उन्होंने कर दिया है। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि इसको प्रॉपर्ली आप समझें, और रेफरेंस के लिए उन्होंने पूरी की पूरी केस भी दे रखी है कंपाइल करके एक जगह पे। सो लीडिंग केस में, और पिछले साल एक और डॉक्यूमेंट मैं शेयर करना चाहता हूं, दैट इज द सप्लीमेंट्री। हालांकि टाइम बहुत कम है,
बट मैं ये चाहता हूं कि एक लुक उस पे भी जाए। लास्ट ईयर हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ज्यादा डॉक्यूमेंट। ठीक है सर, जैसा है वैसा ही कर लेते हैं, उसको मैं पंप नहीं करना चाहता। एक मिनट, एक क्वेश्चन और था सर मेरा। एक सेकंड मैं कर देता हूँ। अब आपका डोमेन है, वहां पर आपको उसको ये करे ना करें। ग्रुप पे मैं एक और डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। ये अराउंड 40 पेज 23 पेज का असेसमेंट है, 19 पेज के मनिंदर सिंह का है। ये जो डॉक्यूमेंट है मैंने अभी शेयर किया, वो लास्ट ईयर विजय हंसारिया सर ने किया। यस हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन भी सर मेरा पेपर 3 सो से लेके। मेरे कहने का मतलब है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट को यदि आप सिर्फ 3 बार रीड आउट करेंगे, न्यूज़पेपर की तरह भी यदि 3 बार आपने पढ़ लिया, जो कि न्यूज़पेपर खुद 50 पन्ने का होता है, उससे कहीं कम है ये। यकीन मानिए आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। अब थोड़ा सा और भरत जी ऊपर कीजिए, मैं 2 मिनट में कंक्लूड ही कर दूं। थोड़ा सा और इसको ऊपर कीजिए मेरे पेज को। इस पेज का लास्ट पोर्शन मुझे दिखाइए। बस इसमें आप देखिए, एओआर सिस्टम से 11 क्वेश्चन है, एडवोकेट एक्ट से 41 क्वेश्चंस हैं, which is concerned to the disciplinary proceedings and BCI rules in last 5 years, last 8 years. आप देख रहे हैं 8 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके समरी मैंने आपके सामने रखी है, टाइप प्रॉपरली वेरीफाइड, एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन। आप जरा सोच करके देखिए, एओआर सिस्टम से 11 क्वेश्चन पूछे गए, एडवोकेट एक्ट से 41। What is in the Advocate Act? Code of Conduct and Section 35. Section 35 में क्या है? Professional misconduct and other misconduct. Professional तो सबको समझ में आ गया, कंफ्यूजन कहाँ है? अदर क्या कहलाएगा? So most of the time आपको वो अदर पार्ट पे फोकस किया जाएगा। मतलब जो इम्प्लाइड है उसको पिकअप कहाँ से करते हैं, वो आपको जरा फोकस करके देखिए। 41 questions is there, and constitutional issue means article 129, core issues, justice, ये सारा कुछ, और बाकी सारे अलग किए हुए हैं। जब आप देखेंगे तो ये सारा कुछ वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोलूं? मैंने आपके सामने ये सारा कुछ शेयर किया, एनालिसिस। यदि आपको कोई डाउट है देन प्लीज गो अहेड। सर बस एक और डाउट था मेरा पेपर 3 में ही। सर 7 लैम्प्स हैं, तो इसमें ये इज इट अ नेसेसिटी दैट वी हैव टू रिप्रोड्यूस व्हाट इज रिटन इन द टेक्स्ट, और ये हम अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं सर? क्योंकि अपने हिसाब से लिखना, देखिए 7 लैम्प एक अंडरस्टैंडिंग है, एक थ्योरी है, एक डेफिनेशन है। हेड आप पिकअप कीजिए, ऑप्टिमली आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज योर ओन डोमेन। यदि आप ढंग से कंफर्ट जोन में रिप्रोड्यूस करने के लिए वेल कैपेबल हैं, गो अहेड। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जिनको डर लगता है इंग्लिश क्रिएट करने में, लाइन क्रिएट करने में, या कॉन्फिडेंस कम है वो पर्टिकुलर लाइन मेमोराइज कर लेता है बाय वे ऑफ डूइंग मल्टीपल प्रैक्टिस एंड ऑल, rather than reproducing on that point of time. कई बार टाइम सेव करने के लिए भी आपको रिप्रोड्यूस नहीं, मतलब डायरेक्टली प्रिवेंट होना जरूरी है। So it's depend on your own capability or individual's capability and their own convenience and comfortness, कि वो कहाँ comfort है। Definition as it is तो है नहीं, वो 7 point out है and explained। डिफाइंड पूरे का जो है ना, वो इंटरप्रिटेशन आपको करना है। एज सच डिफाइंड तो है नहीं कहीं। एम आई क्लियर योर डाउट्स और नॉट? यस यस, थैंक यू। नेक्स्ट
सर जो पेपर 1 का आपने एनालिसिस दिखाया था सर, वो भी ग्रुप पे शेयर कर दीजिए प्लीज, वो कर आया दिया नहीं है मैम, पहले मैंने शेयर किया, उसके बाद मैंने उसको डिस्कस किया। सर। पेपर 3 का भेजा था आपने आज सुबह। पेपर वन नहीं, का भरत जी ने पेपर 1 का किया है। भरत जी, हैव यू डन दैट और शुड आई डू दैट? कर देंगे सर। प्लीज पेपर कर दीजिए इसको। नहीं तो अगर हो तो आप कर दीजिए सर। अभी मैं शेयरिंग पे हूँ तो थोड़ा सा। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं ही करता हूँ। गिव मी अ मोमेंट। और कोई आई गेस कि मैंने कर दिया अभी। ये जो टेबल वाला जो पार्ट है, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि मैंने बहुत बकवास काम किया, एक बेकार सा काम किया जो नहीं करना चाहिए था। बट इट वॉज सम क्यूरियोसिटी इन माई माइंड कि कैसे फोकस करें, क्या करें स्ट्रेटेजिकली। तो एक ऑर्डर था कि इसको ऐसे करने से ये चीज इवॉल्व होगा, एंड इट वॉज द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, सो मुझे लगा कि नहीं, कर ही लेते। ये एक यूनिक तरीके का काम और अलग है, जो बाकी कोई भी करने से थोड़ा बचना चाहेंगे। बट मुझे लगा कि शायद कहीं इससे कुछ फायदा हो जाए, तो देन इट्स ओके। This is very excellent, sir. Excellent. Actually, no one will do like that. So hard. Actually, इतने लेबर आपने किए सर. Thank you, sir. Thank you. A lot of help, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. It's a lot of help, sir. Thank you, sir. चलो, थैंक यू वेरी मच। तब मुझे मेरे वर्क का जो है ना, कुछ फायदा हो गया, पसंद आ गया आपको, तो दैट इज गुड पार्ट, दैट इज गुड पार्ट। सर, आई हैव वन डाउट प्लीज। जिस चैम्बर जज की पावर ने ये जैसे रूल नंबर 2 है और 1 2 3 4 5 to 41 तक है, सब रूल तो नहीं है सर, ये सीरियल वाइज लिखना जरूरी है। ओम प्रकाश जी, आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दी। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि 2 नंबर में या 5 नंबर में इतना बड़ा सवाल का जवाब कैसे कंपाइल किया जाए। और मैंने कभी इसको सोचने की कोशिश नहीं की। मैंने हमेशा सोचा कि भैया, जितनी मेहनत मैं यहाँ करूं, मैं 5 नंबर को कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। ये जो पोर्शन है ना, जो रिडिक्शन और राइट वाले जो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई बार रिगार्डिंग, जो कि एक लंबी लिस्ट है regarding this registrar and this chamber judge, मुझे कई बार परेशान किया है, और मैंने उस परेशानी को आमने सामने हेड ऑन नहीं किया उसके साथ। सो आई एम सॉरी ओम प्रकाश जी, मैं इसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा, माफ करेंगे मुझे। और अभी टाइम भी नहीं कि इसके साथ मैं हेड ऑन लूं। प्लीज सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज जैसे कोई सिंपली रूल पूछा हुआ है सुप्रीम कोर्ट रूल का कोई क्वेश्चन में, या थोड़ा सा इलेबोरेट हमने कर दिया, तो उसके साथ कोई अगर केस लॉ अगर हमारे पास रेडिली अवेलेबल नहीं है, तो उसको छोड़ सकते हैं ना, सिंपली रूल को ही आंसर कर दें। बिल्कुल मैम, मैं एक चीज साफ कहूंगा कि आपकी जो आंसर है ना, वो रेफरेंस सपोर्टेड होनी ही चाहिए। इसका मतलब मैंने जो इंटरप्रेट किया वो ये है कि यदि मैं साइटेशन सपोर्ट करूं तो साइटेशन के नंबर बहुत ज्यादा हैं। मैंने उसको हमेशा एक प्रोविजन सपोर्ट किया, प्रोविजन ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल, कि यदि एक कोई कंटेंट है, वो मैं कहूं कि उसका जेनेसिस इस आर्टिकल से शुरू होता है, तो आर्टिकल तो बहुत कम है ना मैम, तो मैंने हमेशा आर्टिकल का रेफरेंस या फिर रूल एंड ऑर्डर का रेफरेंस दे दिया। अब साइटेशन का रेफरेंस मुझे तो बिल्कुल नहीं याद रहता। सो आप मेरे आंसर सीट को देखेंगे, चारों पेपर के आंसर सीट आपके सामने है। शायद ही कोई एक या 2 एक्सेप्शनली केस मिल जाएगा जहां पर मैंने किसी लीडिंग केस का सपोर्ट लिया हो, या ये कहा हो कि ये इस केस में ऐसे डिसाइड। मैंने हमेशा इस लाइन को सेफली ये लाया कि सेटल प्रिंसिपल विद रिगार्ड टू दिस इज दिस। उसको मैंने ये एज्यूम किया कि दिस इज द करेक्ट सेटल पोजीशन। कहां सेटल हुआ वो रेफर करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, क्योंकि मैं वो रेफरेंस को याद नहीं कर सकता था।
यदि आप कर सकती हैं और कर देंगी, certainly you will get the very good marks, even optimal marks. मैंने ये देखा है, जिस किसी ने भी एनालिसिस के साथ प्रोविजन ऑफ लॉ का आ जाने के बाद, जैसे मान लीजिए ये कहता है कि मुझसे कोई पूछे कि सिंपली कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात, तो मैं इसकी शुरुआत करूंगा आर्टिकल 145 से, क्योंकि आर्टिकल 145 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है, आर्टिकल 145 1A स्पेशली मैं जा रहा हूं, आर्टिकल 145 1A speaks about the Supreme Court frame its own rule for the purpose of practicing before this court, और उसके तहत उन्होंने रूल फ्रेम किया, यानी उसको मैं करूंगा रीड विथ ऑर्डर 4 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स। तो ये जो सपोर्ट मैंने किया, मेरे लिए एक ही आर्टिकल है 145, बहुत लिमिटेड ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, हैवी वेट पॉइंट है वो, दूसरा ऑर्डर से मैंने कनेक्ट कर दिया, और इसके एवज में मैं एक और साइटेशन लेकर के आऊं और वहां से हटाऊं जो मुझे याद रहे ना रहे। मैंने रूट किसी पेड़ का एक है और मैंने मेन ब्रांच, और उस पर बहुत सारे लीफ है, पत्ते हैं, मैं कितने पत्तों को लोकेट करूं मुझे समझ नहीं आता। नहीं, इन जनरल मैं बता रहा हूं, लेकिन जो आपने पॉइंट आउट किया, यदि आपको याद है, सर्टेनली मेरा पूरा फोकस था इंटायर सिस्टम को समझना और रेफर करना थ्रू द रूट रेदर देन सम साइटेशंस। माइट बी पॉसिबल कि जिसको कंप्लीट पता हो, ऑब्वियसली दे विल गेट द एक्स्ट्रा मार्क्स, और मैं अपने आप को कन्वे करने में कई बार कमजोर पड़, मेरे जो वर्ड होते हैं कॉपी पर, वो शायद प्रॉपर्ली कन्वे नहीं कर पाते जो मैं सोचता हूं। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर किया है। यस सर, साइटेशन याद करने में मेरी भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने आपसे वो मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है ना, सो मैंने हमेशा उसको सेफली ये लिखा कि समझा केस को, तरीके से पढ़ा केस को, फिर मैंने लिखा कि दिस इज द सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ दैट, कि दिस इज आल्सो अमाउंटेड एज मिसकंडक्ट। सिंपल। कब सेटल किया, कहां सेटल किया, वो हिम्मत मैंने नहीं जुटाई, मिसलीड करने की कोशिश नहीं की, बट वो दिया, और एग्जामिनर ने उसको रिवार्ड किया है, लिटरली रिवार्ड किया है। इट इज नॉट ऑप्टिमल, क्योंकि वो डिजर्व भी नहीं करता। ऑप्टिमल रिवार्ड तब होगा जब ऑप्टिमली आप वहां पर सब कुछ कंप्लीट करके दें। जस्ट इमेजिन कि उनके पास 2 कॉपी आए, एक कॉपी ऐसे ही लिखा हुआ हो और दूसरे कॉपी में कंप्लीट सपोर्ट सारा कुछ। ऑब्वियसली आपके पास भी कॉपी आएगा, देन यू विल गिव द एक्स्ट्रा मार्क टू देम। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। सो दैट्स द लॉजिक। सर एक क्वेश्चन और था सर, ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स है ना सर, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में सर ऑर्डर 6 में रूल 6.5 सर, दो इट मे साउंड स्टूपिड क्वेश्चन, बट सिंस मेरे को डाउट है तो मैं पूछ लेता हूँ सर आपसे। सर एक क्वेश्चन था, मैंने देखा था कि वेदर द वेकेशन जज सिटिंग सिंगली कैन डिस्पोज ऑफ 32। तो सर इसमें जो लैंग्वेज एम्प्लॉयड है वो ये है कि एप्लीकेशंस अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन अर्जेंट नेचर which do not involve substantial question of law। तो सर इसका क्या मतलब हुआ? एप्लीकेशन में मतलब he can dispose of where the substantial question of law is not involved? नहीं तुषार जी, जरा आप एक समझिए, उसके इंटेंट को समझिए, वो इंटेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आप जरा एक चीज को समझिए, ये क्लियर कट है वेरियस प्लेसेस पे, फिर वही रेफरेंस वाली बात है जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। वंस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात जब आएगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही सुनता है ना, सुनना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन के लिए कौन कौन से पॉइंट है जहां से आ सकते हैं या कोर्ट रियलाइज कर सकता है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जरूरत अब आ गई। आप इमेजिन कीजिए, मोस्ट ऑफ पर्संस का पहले इंप्रेशन यही होता है कि 32। अब सोचिए, कोई भी आर्गुमेंट किसी भी मैटर में चल रहा है, कोई भी एप्लीकेशन आप मूव कर रहे हैं, वहां भी तो ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं ना।
in any application of which is coming through notice of motion, आप fundamental right का infringement लेकर के आ जाइए. It's headed to the constitutional interpretation. और court really feel it need to be settled. You know, मैं एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं जिससे मैं बचना चाह रहा था, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं. What is the difference between the substantial question of law and question of law, and even question of fact? इसको समझना बहुत जरूरी है. What is the meaning of substantial? आप सोचिए, फिर से मैंने एक ही एग्जांपल मैंने रिपीटेटिवली बहुत जगह लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए दिया है, फिर से मैं दे रहा हूं कि बिल्कुल इजीएस्ट है. यदि कोई फैक्ट डिस्प्यूट में हो और कोर्ट नीड टू बी सेटल ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. यानी दोज फैक्ट विच इज अनसेटल्ड, यानी एक पार्टी कह रही है कि मैंने ऐसा किया और दूसरा पार्टी कह रही है कि नहीं, ये गलत है. Now the dispute is started. Need to be determined which one is correct. And that's an issue before that court. यदि प्रोसिक्यूशन ये लेकर के आती है इसने ये क्राइम किया, दूसरा डिनाई किया कि नहीं, तभी तो वो डिस्प्यूट बनेगा एंड कोर्ट इज बाउंड टू सेटल दैट पार्ट. यदि दूसरा भी मान ले यस, देन वेयर इज द डिस्प्यूट? पूरा ट्रायल खत्म, कन्विक्शन पे जाओ. Am I right or wrong? So the point is, एक पार्टी कहता है मेरा राइट है इनकी ड्यूटी इन्फ्लुएंस करने का, ये नहीं कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कराओ. तो देयर इज अ डिस्प्यूट. दूसरा पार्टी आगे कहता है कि नहीं, आने के बाद वो कहे कि ओके ठीक है भैया, इनका राइट था, मैंने दिया. वेयर इज दैट डिस्प्यूट? So the point is, dispute कितने तरीके से हो सकते हैं? What can be the nature of dispute? Because we are in the dispute resolution mechanism. Well settled. जब से सदियां चलती सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, तब से हर सिविलाइजेशन का, और सिविलाइज हम लोग इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि वी हैव अ जस्टिस सिस्टम, यानी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम. सो द डिस्प्यूट may be regarding the fact, that is called the question of fact. Dispute may be regarding the application of proved set of fact to a law. Application of law to a proved set of fact, यानी ये सारा set of fact है, इस पे कौन सा law apply करेगा? That is called and settled and determined by the court. That is called question of law. मैंने बोला application of law. क्या इस पे ये सेट है, प्रूव्ड है, फैक्ट है, सब कुछ क्लियर हो गया, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट को छेड़ने की जरूरत नहीं है. इसमें क्या 302 लगेगा या 304 बी लगेगा? क्वेश्चन आता है ना. Which law would be applicable? Is this accidental death or it's a murder? That is the question of law. Application of law, once we are seeking, that is the question of law. लेकिन जब वो सिचुएशन अराइज हो जाए जो कि लॉ ही अनक्लियर हो, लॉ को ही सेटल करने की बारी आई, then the word substantial came into the picture. Either in any manner. फॉर एग्जाम्पल 2017 से पहले प्राइवेसी फंडामेंटल राइट था या नहीं, इस पे कुछ जजमेंट कहते थे यस, कुछ जजमेंट कहते थे नो. देयर इज इनॉर्मस सब्सटैंशियल कंफ्यूजन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट. डज इट फंडामेंटल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट और नॉट? This dispute was settled by 9 judges bench judgment, क्योंकि 8 जजेस बेंच एक कहता था, कंफ्यूजन क्रिएट करता था, 3 जजेस अलग क्रिएट करता था, तो उसका आंसर 9 के थ्रू हो सकता था, और 9 जजेस इनोनिमसली कहा कि यस, इट इज द फंडामेंटल राइट.
and this is the definition. This part comes from. So the dispute regarding law itself, या confusion regarding law itself, या any doubt regarding law itself. For example, एक settle principle है और हाई कोर्ट उसको नहीं माना एक्यूटल टू रिवर्सल का, वो भी एक डाउट क्रिएट करता है कि क्या ये लॉ नहीं है जो मानना चाहिए था उसको. इटसेल्फ सब्सटेंशियल. क्या हाई कोर्ट उसको पार कर सकता है? कहीं ऐसा तो ना हो कि ये कल्चर बन जाए. दैट इज द प्रेसिडेंट. सो इटसेल्फ क्वेश्चन रिगार्डिंग देयर ओन जुरिडिक्शन. So this is also the word substantial is adding into this question, whether they can do that. We are asking from this court to settle that, so that कि ये precedent ना बने और आगे लोग उसको adopt ना करें. Am I clear or not? So the word substantial means law itself under cloud, which need to determined by the court if that law. Now I can say the substantial question of law rather than question of. So substantial question of law, मैं substantial question of law मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को कोई confusion तो नहीं है, क्योंकि मैंने अभी distinction create किया between question of fact, it was regarding dispute regarding application of law, it is the question of law. Dispute regarding law, ambiguity of the law itself, it is the substantial question of law, which is need to be determined by the court of law. So the substantial question of law, यदि constitution interpretation से concerned है, तो वो क्या कहलाएगा? Substantial question of law as interpretation to the constitution. और यदि कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, किसी जनरल लॉ से रिलेटेड, लाइक कॉन्ट्रैक्ट बहुत जनरल लॉ है, सीपीसी, इवन आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट. सो ऑल दीज आर व्हाट द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस. 3 चीज मैंने क्लियर किया. सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, substantial question of law as interpretation of the constitution as available in article 132 and 133 में ये मेंशन करता है the substantial question of law of general importance. So आपको ड्राफ्टिंग के समय भी ये क्लियर रहना पड़ेगा कि what you are raising, question of law or substantial question of law. Once you are raising substantial question of law, the word substantial sufficient to drag the attention of the court कि वाकई क्या substantial, and if they find substance with that, certainly आपको entertain करेंगे. और उसको settle करने का मतलब ही है कि it must be leaded to the reported judgment. All judgment are not reported because that settlement important to treated as law. Law means the general part must be applied to the further proceedings in the judicial system. So the substantial question of law is very crucial, very exceptional and very frequent in this court. इस कोर्ट के जितने भी जजमेंट आप देख रहे हैं जो लीडिंग की तरफ जाता है, वो रूटेड होता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन में. सो द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ड्राफ्टिंग में भी इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और इसके लिए एक जजमेंट है 60s के अराउंड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, चुन्नीलाल वी मेहता. आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा. चुन्नीलाल मेहता का जो जजमेंट है उसमें ये सारा कुछ क्लियर किया हुआ है कि व्हाट इज दिस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, व्हाट कैन बी, व्हाट कैन नॉट बी. व्हाट मैं कहां से मैं इस मोड में आ गया, आई डोंट नो, आई फॉरगेट द
बात। वो क्वेश्चन दूसरा था सर मेरा, दो रिलेटेड, कि इस वाले में जो वेकेशन जज के पास में पावर्स हैं। Exactly. Now I got the point. So substantial question of law as interpretation to the constitution only कहाँ रेज किया जा सकता है या बिना रेज किए ड्यूरिंग आर्गुमेंट कोर्ट कब रियलाइज कर सकता है? इट मे बी एनी पिटिशन, इट मे बी 32 or otherwise, or by any application, or by any IA, or by any MA, subject to realization satisfaction of the court. So it might be happen, जिसके लिए 5 जजेस का बेंच के कंपोजिशन है मिनिमम, जो फर्दर हियरिंग वहीं जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को जब वेकेशन में जब एक जजेस बैठ जाते हैं जो डिवीजन का काम करते हैं, does they are allowed to entertain to that application? Does it be not allowed word ठीक नहीं होगा, does it would be justified? So वेकेशन के कंडीशन में यदि ऐसा कुछ आ जाए तब आप कैसे डील करेंगे या हैंडल करेंगे, वहां क्या होना चाहिए? That is talking that rules. अब आप इंटरप्रेट कर लीजिए। I don't want to go into that rule. Enough citation, enough insight मैंने आपको दिया। Now अब अपने ब्रेन को दोहराइए और उसकी जगह अप्लाई कीजिए। डोंट ड्रैग मी इनटू द स्पेसिफिक क्वेश्चन। आई एम सॉरी। तुषार जी, आर यू सेटिस्फाइड विद माय आंसर सम अप टू सर्टेन लिमिट और नॉट? सर मैंने एक्चुअल में अपना ब्रेन अप्लाई कर लिया था, उसके बाद मुझे डाउट है कि नहीं, मैंने मेरे डिस्कशन के बाद डाउट्स पे कितना क्लैरिटी आई या नहीं आई, मेरे को इतना पता लग गया कि इफ देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, certainly vacation bench cannot decide that finally, but interpretation of the doubt remains even after. काइंडली रीड इट अगेन, शायद रास्ता निकल जाए। क्योंकि मैं अभी उतने डिटेल्स में मैं तैयार भी नहीं हूं, मैं जाना भी अभी नहीं चाहता हूं, बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स द क्लोजर। और कोई क्वेश्चन? So, actually, नोटिस ऑफ मोशन, हाँ सर, वो अगर आप नोटिस ऑफ मोशन देखिए, नोटिस ऑफ मोशन का लिटरल अंडरस्टैंडिंग जो मेरी है टेक्स्ट से हट करके, वो है अर्जेंसी से रिलेटेड, विच इज नीड टू बी रिक्वायर्ड अटेंशन ऑफ द कोर्ट, माने कोर्ट के सामने उसकी अर्जेंसी के साथ आपको प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, या कोर्ट के सामने लगने वाले वो सारे मैटर ऑल आर ट्रीटेड एज अर्जेंट, तो दैट इज कॉल्ड द नोटिस ऑफ मोशन। जो भी एप्लीकेशन, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन रजिस्ट्रार डिस्पोज ऑफ करते हैं, कुछ चैम्बर जजेस डिस्पोज ऑफ करते हैं, कुछ कोर्ट के सामने लगती है जहां पर आप स्पेसिफिक ऑर्डर रिक्वायर्ड होती है। सो वो सारा कुछ जो कोर्ट के सामने लगे और स्पेसिफिक, इवन एमए जब आप लगाएंगे जो डिस्पोज ऑफ हो चुका है, तो आप नोटिस ऑफ मोशन मूव करेंगे। इफ देयर इज द अनदर पार्टी, तो उसके नोटिस में भी आना चाहिए कि ये मैटर लगने जा रहा है। इसके लिए एक ऑर्डर डेडिकेटेड है, आई गेस कि 9 और 11 समथिंग सुप्रीम कोर्ट रूल्स में। जी है सर। मतलब ये कहना सर, तो क्या ये कहना सही होगा कि नोटिस ऑफ मोशन इज अनदर वर्ड फॉर एप्लीकेशन? यस, कह सकते हैं। मैं एक एग्जांपल में बतला रहा हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मेरे कोलीग्स सुप्रीम कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट में जब भी पिटिशन फाइल करता, जो कुछ भी हाई कोर्ट में लोगों ने फाइल किया हुआ, तो उनको ये पता होगा, वहां एक पेज का एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन ऑफ नोटिस ऑफ मोशन का। दिल्ली हाई कोर्ट में ये जाता है, और उनकी मैटर एक सर्टेन डेट बाद लगनी थी, और उनको उसमें रिप्लाई फाइल करना था, और रिप्लाई फाइल करने के बाद वो मैटर को अर्जेंटली कल ही लिस्ट कराना, क्योंकि एक अर्जेंट सिचुएशन अराइज हो गया था कल या परसों। उन्होंने रिप्लाई फाइल कर दिया, बट नोटिस ऑफ मोशन नहीं फाइल किया। अब वो मैटर कोर्ट में इनके अर्जेंसी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब आप बताओ मुझे कि वो कोर्ट में मैटर आएगा या अपने अगले डेट का वेट करेगा? सर्टेनली अगले डेट का वेट करेगा। देन उन्होंने बोला कि ऐसा है, देखिए राजीव सर कि मैंने ये फाइल कर दिया,
और ये मैटर ही नहीं आ रहा। मैंने बोला नोटिस ऑफ मोशन फाइल किया आपने? बोलता है कि नहीं। देन हाउ दे विल नो कि मैटर विल कम ऑन सच एंड सच डेट? सो फिर उन्होंने नोटिस ऑफ मोशन प्रोसीड किया भाग दौड़ करने के बाद, और तब जाकर के वो मैटर मतलब बहुत क्लोज टू दैट पार्ट लिस्ट हुआ, और कोर्ट ने रिक्वायर्ड ऑर्डर उसको कंसीडर करके पास किया। सो द थिंग इज, कोर्ट के से जो रिक्वायर्ड ऑर्डर है वहां नोटिस ऑफ मोशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक इंस्टांस मैंने बतलाया, और इस इंस्टांस से आपको जैसे समझना है ऑर्डर के साथ पढ़कर समझ। Now should I close this meeting? This is the 7:20. No one answer. हाँ. So I want to say thank you very much to all of you to participate into the discussion at very early morning at 5:30 up to this around 7:30 and sometimes 8 o'clock. Thank you all and all the best to all of you. Whoever जो आज का एग्जाम दे रहे हैं, हमने इस बार दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं या आगे पार्टिसिपेट करेंगे, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये कल्चर की शुरुआत है जो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। एवरी ईयर फॉर द जब से नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन ऑफ योर एग्जाम आ जाए उसके बाद से मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, और हर टाइम मैं इम्प्रूव करने का कोशिश करूंगा। दिस इज द वन पार्ट। और आपके एंड पे आपका जो इसका एडवांटेज आफ्टर द एग्जामिनेशन आया, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कैसे कैसे एडवांटेज आया, सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन माय प्रेजेंटेशन as well as include your experience into that. So after finishing of your exam, I would like to conduct 1 or 2 sessions to listen your experience. आपने अभी मुझे बोलने का मौका दिया और आपने सुना, मैं आपके एक्सपीरियंस को सुनना चाहता हूं, क्योंकि वो चीज भी जरूरी है आगे कम्युनिकेट करना, और आपका पार्टिसिपेशन हमेशा बना रहे, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। आज मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट। यदि कोई फिजिकली चाहे कि कुछ क्वेश्चंस रेज करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, देन आई एम अवेलेबल फ्रॉम 10 to 4 o'clock इन द सुप्रीम। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you so Thank you much. so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, Rajiv. Thank you, sir. Most welcome to all of you. Thank you, sir. All the best और बहुत अच्छा करें आप लोग। इन बिटवीन यदि कुछ लगता है देन आई एम देयर। यदि मेरे हेल्प की जरूरत है देन Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. राजीव जी, थैंक यू। Blessings. मनोज जी, आप ही दे रहे हैं तो इस बार? मनोज जी, आप किस चीज का